Hello everyone, welcome to all of you in our today's video. Second topic, crops for Europe. The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops the European required. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. In this century, and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops: jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in the United Provinces, now in our Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra, and Punjab rice in Madras. How was this done? The British used a variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed. Let us take a closer look at the story of one such crop, one such method of production. तीसरे अध्याय का दूसरा विषय है यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा कर सकते हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जो अभी उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में, वहाँ गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरतों की फसलों को खेती के रूप में फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। चलिए इसी तरह की एक फसल का उत्पादन की ऐसी एक पद्धति को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सब टॉपिक, डज कलर हैव अ हिस्ट्री? Figure 5 and 6 are two images of cotton prints. The image on the left, figure 5, shows a kalamkari print created by weaver of Andhra Pradesh in India. On the right is a floral cotton print designed and produced by William Morris, a famous poet and artist of 19th century Britain. There is a one thing common in a two prints. Both use a rich blue color, commonly called indigo. Do you know how this color was produced? The blue that you see in these prints was produced from a plant called indigo. It is likely that the blue dye used in the Morris prints in a 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. For India was the biggest supplier of indigo in the world at that time. पहला उपविषय, क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की दो तस्वीरें दी गई है। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाए गए हैं, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों ही छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का उपयोग किया गया है या इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा गया है। क्या आप जानते हैं यह रंग किस तरह से पैदा किया जाता था? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है ना, वह नील के नाम से एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। Second subtopic, why the demand for the Indian indigo? The indigo plants grow primarily in the tropics. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France, and Britain to dye clothes. However, only small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very high. European clothes manufacturers therefore had to depend on another plant called wood to make violet and blue dyes. Being a plant of the temperate zones, wood was more easily available in Europe. It was grown in northern Italy, southern France, and in parts of Germany,
and Britain. Worried by competition from indigo, wood producers in Europe persuaded their governments to ban the import of indigo. Cloth dyer, however, preferred indigo as a dye. Indigo produced a rich blue color, whereas the dye from wood was pale and dull. By the 17th century, European clothes producers persuaded their governments to relax the ban on indigo import. The French began cultivating indigo in Saint Domingo in the Caribbean islands, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantations also came up in the many parts of the Northern America. By the end of the 18th century, the demand for Indian indigo grew further. Britain began to industrialize its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes. While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. Clothes dyer in Britain now desperately looked for a new sources of Indian indigo supply. From where could this indigo be procured? बच्चों, दूसरा उपविषय में भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी इस विषय पर बात की गई है। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी ही यूरोपीय बाजारों में पहुंच थी या वो पहुंच पाती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नाम का एक पौधा पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड जो था ना, वो पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता भी था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन से यूरोप परेशान जो यूरोप था के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वे नील के आयात पर पाबंदी लगाने को कह रहे थे और उन्होंने लगाया भी। मगर कपड़े को रंगने वाले जो नील है उसको वो पसंद करते थे लोग। नील से बहुत चमकदार नीला रंग निकलता था, जबकि वोड से मिलने वाला जो रंग था ना वो बेजान फीका ऐसा होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे लोगों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादक में भारी इजाफा को देखा गया। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो मिलने वाली आपूर्ति थी उसके कई जो कारण थे वो बंद हो गए। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैन से थे, किसी और स्रोत की वे तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था, ये एक सवाल है। Third subtopic, Britain turns to India. Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation. From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly, and Bengal indigo came to dominate the world market. In 1788, only about 30% of the Indian indigo imported into Britain was from India. By 1810, the proportion had gone up to 95%.
As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. Over the years, many company officials left their jobs to look after their indigo business. Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at that time. तीसरी उपविषय भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी और 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाले नील दुनिया के बाजारों में छा गया। 1788 में ब्रिटेन पर आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने लगे, अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसे नहीं थी, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को भी तैयार हो गई थी। Fourth subtopic, how was indigo cultivated? There was two main system of indigo cultivation, niche and rayuti. Within the system of niche cultivation, the planter produces indigo in the land that he directly controlled. He either bought the land or rented it from the zamindar and produces indigo by directly employing hired laborers. चौथा उपविषय, नील की खेती कैसे होती थी? तो नील की खेती दो तरीकों से होते थे, एक निज और दूसरा रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपने ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मीनों से ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पे ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाया करते थे। फिफ्थ सब टॉपिक, द प्रॉब्लम विथ निज कल्टिवेशन। The planters found it difficult to expand the area under niche cultivation. Indigo could be cultivated only on fertile lands, and these were also already densely populated. Only small plots scattered over the landscapes could be acquired. Planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantation. Where could they get such land from? They attempt the lease in land around the indigo factory and evict the peasants from the area. But this always led to conflict and tension. Nor was labor easy to mobile. A large plantation required a vast number of hands to operate, and labor was needed precisely at the time when peasants were usually busy with their rice cultivation. Niche cultivation on a large scale also required many plough and blocks. 1 bigha of indigo cultivation required 2 ploughs. This meant that a planter with 1000 bighas would need 2000 ploughs. Investing on purchase and maintenance of ploughs was a big problem. Nor could supply be easily got from the peasants since their plough and bullocks were easily on their rice field. Again, exactly at the time that the indigo planter needed them. Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand their area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. The rest was under an alternate mode of cultivation, the Rayuti system. पांचवा उपविषय, द प्रॉब्लम विथ निज कल्टिवेशन अर्थात निज खेती की समस्या। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे छोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए बड़े भूखंडों यानी ज़मीन की ज़रूरत थी।
इस तरह ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया, जिससे टकराव और तनाव तनाव जो वो फैल गया। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसानों को धान की खेती में व्यस्त रहना होता था। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होता था। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत होती थी। हलों की को खरीदना और उनका रखरखाव एक बहुत बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल पा रहा था। उन्हें अपने लिए ही उन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील के उत्पादकों की जरूरत होती थी, उस समय किसानों के हल बैल भी चावल की खेती में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने के में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत ही रखी गई थी। Sixth and last subtopic is indigo on the land of ryots. Under the rayoti system, the planters forced the ryots to sign a contract and agreement. Satta, at times they persuaded the village headman to sign the contract on behalf of the ryots. Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo, but the loan committed the ryot to cultivating indigo on the least 25% of the area under his holding. The planters provided the seeds and the drill, while the cultivators prepared the soil, sowed and seed, and looked after the crop. When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the ryot and the cycle started all over again. Peasants who were initially tempted by the loans soon realized how harsh the system was. The price they got for the indigo they produced was very low, and the cycle of the loan never ended. There were other problems too. The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soil, in which peasants preferred to cultivate rice. Indigo, moreover, had deep roots and it exhausted the soil rapidly. After an indigo harvest, the land could not be sown with rice. इस अध्याय में प्रथम विषय के अंतिम उपविषय या छठी उपविषय कह सकते हैं, वह है रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयतों की व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध या सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखिया को भी रैयतों के तरह से समझौता करने के लिए बाधित कर देते थे। जो अनुबंध पर हस्तखत या दस्तखत करता था, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दिया जाता था, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन चक्रों में या इन कर्जों के चक्रों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी। कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया बेहतरीन ज़मीन पर खेती करे और नील की खेती उन्हें वहाँ से प्राप्त हो। लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और इन गहरी जड़ों के कारण वह मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेता है। नील की खेती से किसानों को बहुत समस्याएं आ रही थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी, क्योंकि मिट्टी के जो भी पोषक तत्व होते हैं वो रूट तो ले लिया रहा करता था। तो इस प्रकार नील की खेती से बागान के जो मालिक होते थे या किसान होते थे, उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा।
इस तरीके से बागान मालिक और किसानों के बीच मनमुटाव बढ़ता चला गया। किसान कभी भी नहीं चाहते थे उनके अच्छे से ज़मीन पर नील की खेती की जाए और ज़मीन को कोई तकलीफ़ हो या उनकी उर्वरकता ख़त्म हो जाए। इस प्रकार आज हमने सेकेंड टॉपिक क्रॉप्स फॉर यूरोप और उसके बहुत सारे सब टॉपिक को देखा। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हुए होंगे। अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।